Hey, hello everyone. This is my travel diary to Konnur and Valparai in December 2019. I am editing these videos and will be uploading in this month only, that is December 2020. From this you can draw like how active person I am. So let's continue with the video. Now I am already out of my home, going towards the meetup point. So the meetup point is around 30 kilometers from here. Currently I am in MG Road, Bangalore. In this ride, Mr. Siddhant will be joining us. He is a part of our biking club and also he is a student of IISc Bangalore. So let's keep going. The time is now 3 in the morning. That's why you can see this clean and empty streets of Bangalore. Otherwise, in daytime, these streets are kind of mess. The weather is chill and it's not that cold as it's supposed to be in the month of December. And sorry for the wind noise and this staying back in the camera frame because इसमें सामान ठूस ठूस के भराया गया है. सब कुछ कैमरा गियर्स एंड बाइक का पार्ट इसी में डाला गया है. In this trip we will be covering two hill stations of Tamil Nadu. The first one is Kunnur and the second one is Valparai. So in day one we are first going to Kunnur and it's around 285 kilometers from Bangalore. According to map it's showing 6 hours 50 minutes, but we'll be covering it in 4.5 or 5 hours. I will turn off the video now and we'll see you once we join the highway. Okay, so now we are off from the meetup point and we are on this Bangalore-Mysore highway. और ये सामने भाई साहब भगाते हुए अभी इसी ने 45 मिनट्स लेट कराया है. तो फिलहाल जर्नी कंटिन्यू करते हैं और सनलाइट निकलने के बाद कैमरा ऑफ करता हूँ. गुड मॉर्निंग. तो नाउ वी हैव एंटर्ड मैसूर बिकॉज पीछे में बाईपास था वो लेना भूल गया और मैप में भी ठीक से दिखाया नहीं. तो हम लोग मैसूर के अंदर से जा रहे हैं. ये क्लिप में आप लोग देख सकते हैं खाली रास्ते. मैसूर अर्ली मॉर्निंग कैसा दिखता है, पूरा खाली रास्ता और मस्त लग रहा है, बढ़िया. Now we are searching for some place to eat because I'm very hungry now and it seems like everything is closed. We're inside the Mysore city now. Nothing is open and seems like we'll have to search before reaching the highway because I don't think so we'll get anything once we join the highway. अभी कुछ मैसूर के बारे में बात करते हैं. ये कभी कर्नाटक का कैपिटल था एंड मोस्ट ऑफ द कन्नाडा किंग्स रूल फ्रॉम दिस प्लेस. यहाँ पे कई सारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं. यहाँ पे मैं बचपन में आया था, ठीक से याद नहीं ये सिटी कैसे दिखने में था. तो अभी बेंगलोर में मेरा 3 साल हो गया है. ये फर्स्ट टाइम मैं मैसूर में आया या मैसूर से होके कहीं जा रहा हूँ. बहुत सुंदर लग रहा है. यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जो रोड साइड में दिख रहे हैं वो भी काफ़ी सुंदर है. Back there I saw a rice field that was shining like a gold because of the sunrise at the horizon, and I stopped there to click some photograph. Now it seems like Mr. Siddhant has not heard the horn and he went away, so I'll be chasing him now.
and it seems like this highway is very well paved. It's looking so awesome with little bit of fog and the sunrise on the right hand side. फ़िलहाल अभी तक तो बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि रोज़ काफ़ी अच्छे हैं और सीनरीज तो आप जैसे देख ही सकते हो, काफ़ी सुंदर है। और लेकिन ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि ये फॉगी विंड्स थोड़े शिवरिंग होते हैं। तो अभी फ़िलहाल कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉप विल बी एट बंदीपुर टाइगर रिजर्व एंट्री गेट, ताकि वहाँ पे एक फॉरेस्ट रिजर्व है जहाँ पे एंट्री करना पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ेगा। तब तक के लिए हम चलते रहते हैं। और ये रहे जनाब, वापस मिल गए हमको। और ये क्या इशारा किया इनको बताओ। Well. So now we are inside Bandipur National Park, and this is a very scenic route, so I will not cut it out. You can watch and enjoy with the ambient music. And it's inside National Park, so it's recommended to ride or drive very slow here. Animals may cross at a time, and it's also recommended not to stop at any point, because I think last few months back there was a viral video of a tiger chasing two bikers in the same national park on the same road, and it's a single lane road, so ride or drive very carefully आउट फ्रॉम द नेशनल हाईवे रोड। अभी टाइम है कुछ खाने के लिए, ढूंढने के लिए कुछ ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी तक बस चाय और केक ही पेट के अंदर गया है, तो हालत काफ़ी ख़राब है। जल्दी जल्दी कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं।
हुआ स्टार्ट पहाड़ी रोड्स, इसी के लिए ही तो आते हैं भाई साहब। इसमें चलाने का जो मजा है ना, वो बाइक नहीं चलाने वाले नहीं समझेंगे। कार में भी मजा आता है, लेकिन बाइक में जो ठंडी ठंडी हवाएं और ये कॉर्नर सब मिलते हैं ना, बड़ा मजा आता है। लेकिन इसमें रिक्स ये है कि जब रेनी या स्लिपरी रोड होता है, इसमें काफ़ी हद तक बाइक स्किड करते हैं, और कभी कभी ज़्यादा लीन करते हो तो साइड स्टैंड या साइलेंसर टच होके भी बहुत रिस्क रहता है गिरने का। लेकिन ये अभी रोड्स थोड़ी खाली है, और प्लस रोड्स ड्राई है, तो इतना दिक्कत नहीं हुआ हम लोग को। और टायर्स भी काफ़ी नए हैं, मेरे वहाँ थोड़ा घिसा हुआ है। पीछे भाई साहब का टायर पूरा नया है, तो हम लोग को खास इतना परेशानी नहीं हुआ है इसमें। तो ये रूट है बंदीपुर क्रॉस करने के बाद ऊटी के लिए। तो ऊटी पहुंचने का दो रूट है, एक कोई नेशनल हाईवे है जो रूट थोड़ा बिजी रहता है और इतना सुंदर नहीं है, और ये रिमोट रूट है जिसमें इस रोड के थ्रू यू विल गेट 49 हेयरपिन बैंड्स लाइक दिस, एंड देन यू विल रीच ऊटी। आफ्टर दैट फ्रॉम देयर 60 किलोमीटर्स यू विल हैव टू गो टू रीच कुन्नूर। तो अभी फिलहाल इसी रूट में कंटिन्यू करते हैं, और प्लीज एंजॉय द सीनिक ब्यूटीज। Now we are very near to Ooty, and as I have told you, these routes are very less populated and less polluted also, and the scenic views are very cool here. As you can see, some locals are here, but will find very small villages out there, but nothing much city types of traffic you will get. Ooty is almost around 10 kilometers left. After crossing Ooty, we will be traveling to Kunnur, where we have booked our hotels there. And Kunnur, from Ooty, Kunnur is around 55 kilometers. And the weather is very cold here, and it was not like the means outskirts of Tamil Nadu.
road with tea plantation. Those looks very nice. And one more thing I have observed is the roads are very clean. The sides are clear of litters and any plastics. And one thing which I like most are the heartbeat bands. Like, those looks very awesome, and at the same time they are very dangerous also, because you cannot see the incoming traffic if he is overtaking or he is in the line. फिलहाल अभी ऊटी क्रॉस कर लिया गया है। वहाँ पे कुछ रोड कंस्ट्रक्शन था तो ट्रैफिक में फंसे ऑलमोस्ट 40 मिनट्स। अभी टाइम हो चुका है, दिख नहीं रहा है, पता नहीं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग डायरेक्टली होटल जाएंगे, गियर उतारेंगे, कुछ देर रेस्ट करने के बाद लंच के लिए आएंगे। लंच करके कुन्नूर के आसपास जो काफ़ी देखने लायक जगह है, जैसे डॉल्फिन स्नोज और 2-3 हिली व्यू पॉइंट्स है, वहाँ जाएंगे। और रात को आज यही रहने वाले हैं। तो कल सुबह ब्रेकफास्ट के बाद निकलेंगे वलपराई के लिए। वलपराई में भी हम लोग का स्टे बुक है। उसके पिछले दिन हम लोग निकलेंगे बेंगलोर के लिए। और अभी जैसा कि देख सकते हो, काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं। हर एक हिल, छोटे मोटे हिल है, और सबके ऊपर ट्री प्लांटेशंस दिखाई दे रहे हैं, और रोड्स काफ़ी ब्रॉड है। और एग्जैक्ट किलोमीटर से ऊटी से कुन्नूर तक का 58 किलोमीटर्स, जो कि लगभग लगता है, बाइक में लगता है 1.5 आवर्स अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक कंडीशंस। कार में थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि ट्रैफिक में ज़्यादा फंसता है, और ये ऊटी में कोई बाईपास नहीं है, तो वहाँ पे ट्रैफिक में फंसा जा सकता है, तो काफ़ी टाइम लग सकता है वहाँ से निकलने में। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, होटल के बाद लंच के बाद मिलते हैं।